اللہ اکبر، میں نے دھیمے لہجے میں کہا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت کمرے میں ایک اور آواز گونجی، اللہ اکبر۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل کانپ گیا، یہ کسی عورت کی آواز تھی، جبکہ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس وقت گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اماں میری بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ دوبارہ میں نے اللہ اکبر کہا تو پھر اس کے ساتھ ہی کمرے میں وہی آواز گونجی۔ میرا پورا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اگر میری جگہ وہاں پر کوئی بھی مولوی کھڑا ہوتا تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے ڈر جاتا۔ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ زندگی میں پہلی بار پیش آیا تھا۔ میں شروع سے ہی بہت ڈرپوک تھا اور جنات سے خوف کھاتا تھا۔ اگر کہیں پر کوئی ان کی بات کر رہا ہو تو میں انہیں خاموش کروا دیتا یا پھر اس محفل سے اٹھ کر چلا جاتا خود۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی میرا سامنا اس طرح کے حالات سے ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سلام پھیرا، پھر میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب بائیں جانب دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دل میں سکون محسوس کرتا، اچانک میری نظر سامنے موجود قدموں پر پڑی۔ میں نے سر اٹھا کر چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے ایک لمبی چوڑی عورت کھڑی تھی، اس کا سر چھت کے ساتھ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر سکارف کیا ہوا تھا، لیکن اس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ میں اونچی آواز میں چلانے لگا۔ میرے چلانے کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کافی لوگ میرے گھر اکٹھے ہوئے۔ ایک آدمی تیزی سے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، کیا ہوا اسد بیٹا، کیوں چلائے جا رہا ہے؟ اس آدمی کی بات سن کر میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے پورے کمرے پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ تو ڈر گیا ہے۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ میں اب ٹھیک ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں، اور اس کے ساتھ خود بھی گھر سے باہر نکل گیا۔ ہمارا گھر 2 کچے کمروں پر مشتمل تھا اور صحن کھلا ہوا تھا۔ کوئی 4 دیواری نہیں تھی، یہاں تک کہ چھوٹی سی دیوار بھی نہیں تھی۔ جس کا بھی دل کرتا منہ اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ بہت سارے پیسے کماؤں اور سب سے پہلے گھر کی حالت ٹھیک کروں، مگر اللہ بخشے ابا جان کو۔ ابا جان مرنے سے پہلے اتنا قرضہ چڑھا گئے تھے کہ بعض اوقات تو مجھے لگتا کہ میری ساری زندگی قرضہ اتارنے میں نکل جائے گی۔ اب میرا رخ گاؤں میں موجود واحد باغ کی طرف تھا۔ دراصل یہ باغ اسی شخص کا تھا جس شخص سے میرے ابا نے قرضہ لیا تھا۔ اس باغ کی رکھوالی کے لیے اس نے ایک آدمی رکھا تھا۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے دیکھ کر وہ آدمی جلدی سے سائڈ پر ہو گیا۔ یقیناً اسے یہی لگا تھا کہ میں دوبارہ صفائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ باغ کے اندر داخل ہوا تھا کہ پائل کی آواز سنائی دی۔ پائل کی آواز سن کر میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ میں نے جلدی سے چاروں طرف دیکھا۔ وہاں پر دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اونچے اونچے آم کے درخت اس وقت مجھے جنات سے کم محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو منظر آنکھوں سے دیکھا تھا، اس منظر کے بعد تو یہ درخت بھی مجھے خوفزدہ کرنے لگے۔ جلد ہی مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا کہ پرسکون ہونے کے لیے مجھے اس جگہ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا فیصلہ تبدیل کرتا، میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، تمہارا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تم چلتے رہو اور جب تک میں نہ کہوں تم نے رکنا نہیں ہے۔ یہ آواز سن کر میرے قدم زمین پر جم گئے۔ اب مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں ایک بھی قدم اٹھا سکوں۔ اب مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی عورت بہت ہی پیارے انداز میں ہنسی تھی، اور پھر دوبارہ سے میرے کانوں میں آواز گونجی، تم میری سوچ سے بھی زیادہ ڈرپوک اور ضدی ہو، اس طرح نہیں مانو گے۔ پھر میرے قدم خود بخود ہی سامنے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں ایک چھوٹا سا کچا کمرہ بنا تھا۔ دراصل کبھی کبھار جب اس باغ کا مالک یہاں پر آتا تو اس کمرے میں چارپائی ڈال کر لیٹ جاتا۔ جب چوکیدار نے مجھے اس کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو دور سے چلانے لگا، ارے وہاں کیوں جا رہے ہو، وہ کمرہ مالک کا ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو تمہارے لیے مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ چوکیدار کی آواز پر بھی میں نہیں رکا، کیونکہ اس بار میرا جسم کسی اور کی مرضی کے مطابق کام کر رہا تھا۔
मुझे लग रहा था जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया हो। जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो लकड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद हो गया। अब कमरे में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। थोड़ी देर में जब अंधेरा ख़त्म हुआ तो सामने खड़ी लड़की को देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिससे कुछ अरसा पहले मिला था। उस लड़की की फरमाइश सुनकर मेरे तो होश गुम गए। उसने मुझे कहा कि 1 हफ्ता पहले की बात है, मैं मामूल के मुताबिक चौधरी के घर में मजदूरी कर रहा था। उसके घर में मजदूरी करते मुझे तकरीबन 5 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। घर के हालात भी बहुत ख़राब हो गए थे। अम्मी रोज़ मुझसे पैसों का मुतालबा करती, मगर मेरे पास उन्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं होता। दूसरी तरफ अंसर भी अपने उधार का मुतालबा कर रहा था और उससे कहूँगा कि आज मुझे पैसे चाहिए और पैसे लेकर ही वहाँ से निकलूँगा। जब बात करने के लिए चौधरी के पास गया तो वो मुझे देखकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी बेगम को कहने लगा, अरे बेगम, तुमने मुझे बताया नहीं कि मैंने करीबी गांव जाना था। उसने यूँ जाहिर किया हो जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो, मगर मेरी उससे एक बार नज़र मिल चुकी थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो ये सारा ड्रामा सिर्फ मेरी वजह से ही लगा रहा है। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलता, मैंने उसे आवाज़ दी और कहा, चौधरी साहब, मैं आपको इस वक्त परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी में मुसलसल 7-8 घंटे काम करने की वजह से मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा था। अरे असद बेटा, तुम यहाँ, खैरियत तो है? जी चौधरी साहब, मैं आपसे पैसे लेने के लिए आया था। मेरी बात सुनकर चौधरी गड़बड़ा गया और फिर कहने लगा, अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे? मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। चंद लम्हे तक तो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर मैंने उससे कहा कि वही पैसे जो 6 महीने की मजदूरी के बनते। मैं 6 महीने आपके घर में गधों की तरह काम कर रहा हूँ। अब हर हफ्ते आप मुझे यही कहते हैं कि अगले हफ्ते पैसे दूंगा, लेकिन जब अगला हफ्ता आता है तो आप दोबारा से निकल जाते हैं और दोबारा मुझे मज़ीद 7 दिन का वक्त देते हैं। बेटा, शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम्हारे बाप ने एक बार मुझसे कर्जा लिया था। चौधरी की बात सुनकर मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। मैंने उन्हें कहा कि वो कर्जा मैं आपको एक लंबा अरसा पहले ही अदा कर चुका था। अब आप पर कोई कर्जा नहीं है। आप मुझे चुप करके मेरे पैसे दीजिए ताकि मैं जाऊं यहाँ से। मैं किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं करना चाहता और ना ही मुँह मारी करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुमने जो करना है वो मारी करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुमने जो करना है कर लो और कल से इस घर में काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे एहसान का तो कोई ज़माना ही नहीं है। तुम्हारे बाप ने मुझसे लाखों रुपए उधार लिए थे और बदले में मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे 6 महीने ही मजदूरी करवाई है ना। कौन सा इतना बड़ा जुल्म हो गया है तुम पर? वो चौधरी अब हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे ज़िंदा ज़मीन के अंदर गाड़ दूँ। मैं उसके पास गया, उसे धमकी दी कि अब मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूँगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, तुमने जिसे बताना है जाकर बताओ। कोई भी तुम्हारी बात मानने के लिए राज़ी नहीं होगा क्योंकि तुम एक मामूली से किसान के बेटे हो। अरे तुम तो एक गंदी नाली के कीड़े हो। जब उसने ये बात की तो मेरा सब्र जवाब दे गया। मैं बिलाशुबा बहुत डरपोक इंसान था और बिलाशुबा मैं अक्सर ही बातें दिल में दबा जाता, लेकिन आज न जाने मुझे क्या हो गया था। शायद दिमाग घूमा तो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मैंने ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और फिर उसके बाद मैंने उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। मेरी नज़रों के सामने बार बार अम्मा का रोता चेहरा घूम रहा था, जो मेरे सामने हाथ जोड़ती और मुझे कहती थी कि खुदा के लिए चौधरी से पैसे ले आओ, वरना वो इंसान हमसे ये 2 कच्चे कमरे भी छीन लेगा। हम लोगों के पास तो इसके अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है। अम्मा रोते हुए मुझे कहती कि तुम्हें पता नहीं है मैंने कितनी मुश्किलों से ये घर बनाया है। तुम्हारे बाप के खून पसीने की कमाई से बना है। अब मैं इस घर को खोना नहीं चाहती। अगर ये भी चला गया तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अम्मा बहुत जल्द जज्बाती हो जाती, फिर उनके मुंह में जो आता वो कहती जाती। वो इस बात का ख्याल नहीं करती थी कि उनकी बातें मेरे दिल को कितना ज़ख्मी करती हैं। अपनी माँ को जहन में लाए मैं उस चौधरी को मारे ही जा रहा था।
अचानक उसके आदमी वहां चले आए। उन्होंने मुझे चौधरी से दूर किया और मुझे मारने लगे। थोड़ी देर बाद मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। उन्होंने मुझे घर से बाहर फेंका। मेरा जिस्म उस वक्त बुरी तरह से दुख रहा था और मेरा सर भी चकरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त कहाँ जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं चलता जा रहा हूँ। मैंने किसी तरह एक महफूज जगह पर पहुंचना था। गर्मी बहुत शदीद थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। जब पसीना मेरे जख्मों को तंग करने लगा तो मुझे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे और एक ही बात मुझे परेशान कर रही थी कि मैं इतना गरीब क्यों। अगर मैं इतना गरीब ना होता तो कभी भी मेरे साथ इस तरह का सलूक ना होता। अगर मैं अमीर होता तो आज मेरे पास भी मेरे आदमी होते जो मेरे कहने पर चौधरी का वही हाल करते जो हाल चौधरी ने मेरा किया था। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ चौधरी ने मुझे धमकी भी दी थी और कहा था कि वो जल्दी मुझे इस गांव से निकाल बाहर फेंकेगा और मेरा ठिकाना भी छीन लेगा। मैं जानता था कि वो एक ताकतवर इंसान है और उसके लिए ये सब कुछ करना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके साथ मैं अल्लाह की ज़ात पर भी यकीन रखता था। मुझे यकीन था कि अल्लाह मुझे बेयारो मददगार कभी नहीं छोड़ेंगे और मुश्किल वक्त में हमेशा मेरी मदद करेंगे। यही सोचकर मैं खुद को तसल्ली देता। अब मुझे शदीद बुखार भी हो गया। मैं गांव की कच्ची सड़क पर लड़खड़ाता जा रहा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले मैंने एक नस्वानी आवाज़ सुनी थी जिसके लहजे में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ फिक्र थी। मैंने वो आवाज़ पहचानने की कोशिश की लेकिन मुझे याद नहीं आया। जब मुझे होश आया तो मैं एक बिस्तर पर मौजूद था। वो बहुत ही मुलायम बिस्तर था। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठ बैठा और हैरत से अपने चारों तरफ देखने लगा। यहाँ पर पहले मुझे कभी नज़र नहीं आया। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चारों तरफ जंगल था। ये जंगल उस जंगल से मुख्तलिफ था जो हमारे गांव में था। इस तरह के जंगल मैंने अक्सर फिल्मों में देखे थे। मेरे जहन में जो ख्याल आया वो यही था कि अब मैं किसी और दुनिया में चला आया हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खौफजदा नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन जब कमरे के अंदर एक खूबसूरत लड़की दाखिल हुई तो उसे देखकर चंद लम्हों के लिए मैं मबहूत रह गया। उससे ज़्यादा प्यारी लड़की मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखी थी। वो बिलाशुबा हुस्न का मुजस्मा थी और किसी भी मर्द को बहकाने का पूरा सामान थी। तुम मुझे सड़क के किनारे बेहोश मिले थे। उस लड़की की बात सुनकर तमाम वाक़यात मेरी नज़रों के सामने घूमने लगे। मगर मुझे एक बात की हैरत हो रही थी कि उस वक्त तो मेरा जिस्म बुरी तरह से दुख रहा था और मेरे सर में शदीद दर्द था। जगह जगह से खून रिस रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक था। जख्म तो दूर, मेरे जिस्म पर एक भी निशान मौजूद नहीं था। मैं अपने बाजू को देख रहा था जहाँ पर उस जालिम इंसान ने बेदर्दी से मारा था। मुझे लग रहा था कि बाजू की हड्डी टूट गई है, मगर अब बाजू बिल्कुल ठीक और सही तरीके से काम कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ कितनी देर से हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ आए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, तकरीबन 3 दिन ही गुजरे। मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। वो 3 दिन को ज़्यादा वक्त नहीं कह रही थी। मैं जल्दी से नीचे उतरा। इससे पहले कि मैं बाहर जाता उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे इसी वक्त घर जाना है। मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होगी। तुम इस वक्त नहीं सकते। उस लड़की की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरी मदद की, मुझ पर एहसान किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दो। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मानूंगा। जहाँ तक तुम्हारे उस एहसान का सवाल है तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुमने कभी किसी मुश्किल में तुम फंसो तो मुझे याद कर लेना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे कहने लगी कि मैं अभी और इसी वक्त मुश्किल में हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो और इस मुश्किल से निकाल सकते हो। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम सिर्फ चंद दिन के लिए मेरे पास यहाँ रुक जाओ। जब तक मेरे वालिदैन वापस नहीं आते तब तक तुम मेरे पास ही मौजूद रहो। जब वो आ जाएंगे तुम यहाँ से चले जाना। वो मेरे साथ यूं बातें कर रही थी जैसे मैं उसका कोई रिश्तेदार हूँ या मेरा उसके साथ गहरा ताल्लुक हो। मैंने उससे कहा कि
तुम कैसे किसी अजनबी को अपने पास रहने की इजाज़त दे सकती हो, जबकि तुम तो मेरे बारे। मैंने उससे कहा कि तुम कैसे किसी अजनबी को अपने पास रहने की इजाज़त दे सकती हो, जबकि तुम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दूं तो तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह हंसने लगी और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। वो लड़की मेरी सोच से भी ज़्यादा अजीबोगरीब थी। मैंने उससे कहा कि गांव में मेरी माँ बिल्कुल अकेली है, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। लड़की ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि तुम अपनी माँ की फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ अपनी बेटी के घर गई है। तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बहन के घर में बेटा पैदा हुआ है। वो मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती थी, मुझे उस पर शक होने लगा। मैं जल्दी से घर से बाहर निकला तो देखा चारों तरफ जंगल था। मैंने उसकी बात सुने बगैर ही चलना शुरू कर दिया। मुझे यही लगा कि थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद गया था और वो करीबी दरख्त से टेक लगाए मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। मुझे कहने लगी, तुम यहाँ से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक मैं तुम्हें इजाज़त ना दूँ। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी। बार बार मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। अब मैं तुम्हें दोबारा कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुम्हारा दिल करे तो घर के अंदर दाखिल हो जाना, अगर ना करे तो यहाँ से चले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, ये जंगल बहुत से जंगली जानवरों से भरा है। तुम किसी के भी हत्थे चढ़ गए तो जान से जाओगे। ये कहकर वो उस घर के अंदर चली गई। अचानक मुझे एक जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गया और तेज़ी से भागता घर के अंदर दाखिल हुआ। वो सामने खड़ी मुझे देखने लगी कि तुम इस वक्त इस दुनिया से नहीं लड़ पाओगे जब तक अपने दिल से ये डर ना निकाल दो। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखता रहा और उससे कहा कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, जिन्नात से तो डरते हो ना। अचानक मेरा दिल तेज़ी से बेसाख्ता उसके चेहरे की तरफ देखा और दोबारा से वो हंसने लगी और मुझे कहने लगी, फिक्र मत करो, मैं कोई जिन नहीं हूँ। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि तुम खुद ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास ना दौलत है ना ज़मीन है कि जिनकी बदौलत अय्याशी कर सकूँ या जिसकी बदौलत किसी पर अपना रौब जमा सकूँ। मैं तुम्हें रौब जमाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं तुम्हें ये हिदायत कर रही हूँ कि किसी के रौब में आने की ज़रूरत नहीं। तुम सब इतना कुछ मेरे बारे में जानती हो तो फिर ये भी जानती होगी कि मेरे साथ उस चौधरी ने क्या सलूक किया। उसने तुम्हारे साथ ये सलूक इस वजह से किया है क्योंकि तुमने चौधरी को मौका दिया। जब पहले ही हफ्ते ये शक हो गया था कि चौधरी तुम्हें पैसे नहीं देगा, जब तुमने चौधरी को बातें करते सुन लिया, फिर क्यों उसके घर काम करते रहे। तुमने खुद ही वक्त ज़ाया किया और उसके साथ अपनी ताकत भी। तुम्हें इन सारी चीज़ों का कैसे पता चला? ये बातें मैंने माँ को भी नहीं बताई। मैंने परेशानी से उससे पूछा, तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं, अक्ल से काम लेना शुरू करो वरना ये दुनिया तुम्हें नोच कर खाएगी। मैं बिल्कुल खामोश हो गया। 2 दिन वहाँ गुजर चुके थे। उन 2 दिन में बहुत ही अजीब वाक़यात हुए। हर वक्त ही मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता, लेकिन कमरे में कोई भी दिखाई न देता। रात के वक्त मुझे सरगोशी सुनाई देती। दीवारों पर मुझे अजीब व गरीब साए बनते दिखाई देते। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि मैं फ़िलहाल किसी ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जिन्नात बसते हैं, मगर मैं नहीं जानता था कि मैं एक जिन्नी के साथ रह रहा हूँ। और उसका राज जिस दिन मुझ पर खुला, उस दिन मैं इतना बुरी तरह खौफजदा हुआ कि मैं उसे अपने करीब आने की इजाज़त ही नहीं दे रहा था। वो दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे रोते हुए पूछा कि आखिर मैं कैसे तुम्हारे दिल से अपना डर दूर करूँगी? आखिर तुम कब मुझसे मोहब्बत करोगे और कब मुझसे बगैर डरे बात किया करोगे? मैंने उससे कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तर यही है कि मुझसे दूर ही रहो। उसने तेज़ी से अपने आंसू साफ किए और मुझसे कहने लगी कि मैं जल्द इसका हल तलाश कर लूँगी। इसके लिए मुझे तुमसे थोड़े अरसे के लिए दूरी इख्तियार करनी होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास लौट कर ज़रूर आऊँगी। उसने आंखें बंद कर ली। मुँह ही मुँह में कुछ पड़ने लगी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो मेरे चेहरे पर फूंक मारी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं था। मैं अपने घर के दरवाजे के सामने पड़ा था। अम्मा मुझे घर के अंदर ले गई और परेशानी से मुझसे पूछा कि तुम इतने अरसे कहाँ पर रहे? मैंने अम्मा को बताया कि मैं कुछ नहीं जानता। अब वो जिनज़ादी दोबारा से मेरे सामने आई तो मेरी याददाश्त भी चली गई, मगर आज मुझे उससे खौफ महसूस नहीं हो रहा था जैसा खौफ मुझे उस दिन महसूस हुआ। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम इस बार बेहोश नहीं हुए।
मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो और यहाँ पर क्यों आई हो। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मदद करती हूँ और तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरी मदद करने से तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा? फ़ायदा तो मुझे किसी किस्म का नहीं पहुँचेगा, लेकिन मेरी मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। एक जिन्न और इंसान में कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम आग से बनाई गई हो और मैं मिट्टी से। मोहब्बत ये सारी चीज़ें नहीं देखती। अब की बार ये बात उसने गुस्से से कही थी। मुझे उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा, मगर मैं उसे इस तरह की बातें करके खुद को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मैंने जिन्नात के बारे में ये बात भी सुन रखी थी कि जिन्नात गुस्से के तेज़ होते हैं। अगर कोई छोटी सी बात भी उन्हें नागवार गुजर जाए तो हर तरफ तबाही मचा देते हैं। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने अपने बाप का कर्जा अदा नहीं करना? उस जिनजादी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया। मुझे उस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत थी। जिनजादी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे बाप का कर्जा अदा करने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें भी ये काम करना होगा कि तुमने हर रोज़ रात को 12 बजे मेरे पास आना है। मैं तुमसे सिर्फ 1 घंटा बैठकर बातें किया करूंगी। मुझे यकीन है कि तकरीबन 1 महीने बाद तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगोगे और मेरे इश्क में पागल हो जाओगे। उसकी ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसने लगा, क्योंकि ये तो मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि मैं कभी उसकी तरफ माइल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता है। अगर तो मुझे उसकी हकीकत के बारे में ना पता होता तो शायद मैं उसके हुस्न की वजह से उसका दीवाना हो जाता, मगर फ़िलहाल मेरा दिल ये बात जानता था कि उसका ये हुस्न सिर्फ़ और सिर्फ आंखों का धोखा है। हकीकत में वो एक बहुत ही खौफनाक औरत है, और उसका असल चेहरा तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा था। मैंने सुना है कि इंसान बहुत बेवफा होते हैं और हद से ज़्यादा चालाक होते हैं, तो मेरे साथ किसी किस्म की तुम चालाकी नहीं करोगे। अगर तुमने मुझ पर यकीन करने का फ़ैसला किया है तो मुकम्मल तौर पर यकीन करो। मुझे हैरानी हो रही थी कि मैं आखिर उससे इतने आराम से कैसे बात कर सकता हूँ। थोड़े अरसे पहले तक तो मुझे उस तरफ मुझसे देखा भी नहीं जाता था, जबकि अब मैं उससे यूं बात कर रहा था जैसे वो मेरी बचपन की दोस्त हो। ठीक है, मैं तुम्हें आजमा कर देख लेती हूँ, ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। अब मैं वहाँ पर अकेला ही खड़ा था। वहाँ पर खड़े हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि चौकीदार वहाँ चला आया। उसके साथ बाग का मालिक भी था। बाग का मालिक इंतहाई गुस्से से मेरे पास आया और मुझे गिरेबान से पकड़ते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस कमरे में दाखिल होने की? तुम जानते भी हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इससे पहले कि मैं किसी किस्म का जवाब देता, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया। चौकीदार भी हैरान हो गया कि एकदम से इसे क्या हो गया। मालिक बार बार अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो अपने आप को मार से बचा रहा हो, और फिर कहने लगा, अरे कोई इस आदमी को रोको, ये कौन है और यहाँ पर क्यों चला आया है? मैंने और चौकीदार ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। हमें तो वहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में मालिक का चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी गर्दन भी लाल हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे शदीद तकलीफ का एहसास हो रहा है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। चौकीदार घबरा गया और कहने लगा, ये तो मुझे कोई और ही चक्कर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे जिन्नात पड़ गए। तुम यहीं रुको, मैं मौलवी को बुला कर लाता हूँ। जबकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही जिनजादी है जिससे थोड़ी देर पहले मैंने मुलाकात की थी, और अब वो जिनजादी भी मुझे दिखाई देने लगी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। वो मुझे कहकर, मत करो, अभी मैंने इसे और भी बहुत सारा सबक सिखाना है और तुम्हें भी मौका दूंगी कि तुम भी अपना बदला ले लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें रात का इंतज़ार करना होगा। रात के वक्त मैं तुम्हें ऐसी हकीकत बताऊंगी जिसे जानकर तुम इसको हमेशा के लिए तबाह कर सकती हो। फैसला फिर सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं बस किसी तरह इस मालिक को ज़लील और रुसवा करना चाहता था। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं वहाँ से खामोशी से निकल आया। मुझे मालिक की चीखों की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। उसकी चीखें मुझे बहुत सुकून पहुँचा रही थी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले उसने मेरे साथ भी ऐसा सलूक किया था। उसने पूरे गांव वालों के सामने मुझे बुरी तरह से पीटा था, क्योंकि मैं उसका कर्जा देने में लेट हो गया। इस बार वो मुझे इस वजह से पीछे नहीं हट रहा था
क्योंकि गांव वालों ने पिछली बार उसकी बहुत मुखालफत की थी और उसे ये धमकी भी दी थी कि अगर उसने दोबारा मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे जेल में फेंका देंगे। मेरे गांव के लोग बुरे नहीं थे, लेकिन वो इतने अमीर भी नहीं थे कि वो उन जालिम लोगों के खिलाफ मेरी मदद कर सकते या फिर कर्जा उतारने के लिए मुझे कुछ रकम दे सकते। लेकिन उनकी ये मदद भी ज़ुबानी कलामी थी। खैर, मैं ना तो पहले कभी उनके पैसों पर नज़र रखी थी, ना ही बाद में ऐसी कोई ख्वाहिश थी। रात का वक्त था, मैं मखसूस वक्त पर सहन में पहुंच गया क्योंकि छत पर जाने के लिए मुझे कोई भी जगह नहीं मिल रही थी और मैं ये भी जानता था कि छत कच्ची है, ऐसा ना हो कि मेरा वज़न बर्दाश्त न कर पाए और गिर जाए। इसी वजह से मैं इस तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वहाँ खड़े मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अपने नाम की पुकार सुनाई दी। पलट कर देखा तो वहाँ वही जिनज़ादी मौजूद थी जो उस वक्त बहकी नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उसे देखकर मैंने नज़रें चुरा ली और उससे कहा कि माजरत चाहता हूँ, छत पर नहीं जा सकता। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारा बचना है। मैंने उससे कहा कि सहन खुला है, मुझे डर है कि यहाँ मैं कोई बातें करता हुआ ना देख ले। वो हंसते हुए कहने लगी, मुझे तसल्ली देने लगी कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता और तुम्हें अकेला बातें करता देखकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही समझेंगे कि तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उस वक्त शरारती मुस्कुराहट थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, चलो हम नदी किनारे जाकर बैठते, वहाँ का मंजिर खूबसूरत है, तुम्हारे साथ तो वो मंजिर और हसीन हो जाएगा। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा दिल तेजी से धड़का। मैं अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहता था, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। यूं लग रहा था जैसे मेरा हाथ किसी लोहे में फंस गया हो। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने लगा। नदी किनारे पहुंचकर उसने मेरा हाथ छोड़ा और खुद वहां बैठ गई। उसके साथ उसने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मुझसे पूछा कि तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थी। उसने मुझे कहा कि वो बाग का मालिक एक बहुत ही फराडिया इंसान है, वो इसके साथ साथ स्मगलिंग भी करता है। कल वो कुछ लड़कियों को चाइना भेजने वाला है। उस जिनज़ादी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। ये खबर तो मैं काफ़ी अरसे से सुन रहा था कि हमारे गांव से लड़कियां गायब हो रही हैं। गांव के लोगों का यही कहना था कि वो घर से भाग गई हैं, जबकि मुझे हैरानगी होती थी कि एक दिन में इतनी ज़्यादा लड़कियां कैसे भाग सकती हैं, और क्या सबने एक दूसरे से मशवरा किया था कि वो उसी टाइम में गायब होंगी। खैर, मैंने उस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं हकीकत के बारे में जान भी गया तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जिनज़ादी ने मुझे मज़ीद कहा कि उस पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर आया है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है और उसकी मालिक के साथ दुश्मनी भी चल रही है। अगर तुम उसके पास लगाओगे तो मुझे यकीन है वो तुम्हारा साथ देने के लिए ज़रूर राज़ी हो जाएगा। मैं इस बार उसकी बात सुनकर गुस्सा करने लगा और उससे कहने लगा, उसे ये तो नहीं बता सकता ना कि मुझे जिनज़ादी ने ये सब कुछ कहा है। तुम मेरी बात का यकीन कर लो, मुझे पहले कोई सबूत दो, उसी बिना पर मैं उससे बात करूँगा। उसने प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो। जिस कमरे में तुम गए थे उसी कमरे में कुछ ड्रग्स छुपा कर रखे हुए थे और इसके अलावा नशे की दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। तुम बस जाकर पुलिस वालों को वो सब कुछ बता दो, उसके बाद का काम शुरू हो जाएगा और तुम साइड पर खड़े होकर तमाशा देखना। मुझे यकीन है कि कल का फैसला तुम्हारे हक में होगा। ये कहकर वो वहाँ से अचानक गायब हो गई। मैं उससे बात करना चाहता था, उससे इस मामले में पूछना चाहता था, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और उसका यूँ एकदम से चले जाना मुझे बुरा लगा। मैंने सोचा आज देकर दोबारा बुलाता हूँ, लेकिन फिर ये ख्वाहिश दिल में दबा ली और खामोशी से घर आ गया। एकदम से मेरा दिल उदास हो गया। अगले दिन जिनज़ादी के कहने के मुताबिक मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस वाले को जाकर सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जोर से मुझे गले लगाया और मुझे कहने लगा, तुम सोच भी नहीं सकते तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। फिर वो हैरान हुआ और मुझे कहने लगा, तुम उसके खिलाफ ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो ताकतवर इंसान है। मैंने पुलिस वाले को कहा कि ना सिर्फ आपके साथ उसकी दुश्मनी है, बल्कि मेरे साथ भी बहुत पुरानी दुश्मनी है। इसके अलावा मेरे बाप ने उसे किसी ज़माने में कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज से ज़्यादा सूद हो चुका है। वह रोज़ ही मुझसे पैसों का मुतालबा करता है।
اس کے علاوہ وہ مجھے سارے گاؤں کے سامنے بھی ذلیل کر چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح سے ذلیل ہو۔ میں نے پولیس والوں کے سامنے بہانہ بنا دیا کہ میں نے اسے ایک آدمی سے باتیں کرتے سنا تھا، پھر کل غلطی سے اس کمرے میں گیا تو وہاں پر میں نے چیزیں پڑی دیکھی۔ جو جگہ مجھے جن زادی نے بتائی تھی اسی جگہ کے بارے میں نے پولیس والے کو بتا دیا۔ پولیس والے بغیر کسی دیر کے وہاں جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور پھر اسی شام پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ مالک ایک ذلیل انسان ہے جو لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ سارے لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ وہ لڑکیاں جسے اس نے غائب کیا تھا وہ واپس گھر چلی آئی۔ ان کے ماں باپ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے اس جن زادی کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند کرتا۔ اس کے بغیر رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اس بات کا اظہار میں اس کے سامنے بھی کر چکا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ ہنستی اور مجھ سے کہتی کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوگی اور تم کبھی بھی میری طرف مائل نہیں ہوگے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے؟ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتا۔ کبھی کبھار اسے کہہ دیتا کہ تم نے مجھ پر کوئی جادو کیا ہے۔ وہ کہتی کہ میں نے کوئی جادو نہیں کیا، بلکہ یہ تو محبت ہے جو ہم دونوں کے درمیان پروان چڑھ رہی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ جن لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں ان کی قسمت کھل جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، مگر جب سے وہ جن زادی میری زندگی میں آئی تھی میرے حالات ویسے کے ویسے تھے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اماں ابھی تک لوگوں سے مانگ کر کھانا کھاتی، میں بھی کبھی کبھار کھاتا اور کبھی کبھار بھوکا ہی سو جاتا، مگر میں نے کبھی بھی جن زادی سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ میں نے اسے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے امیر کر دو۔ شام کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھا تھا جب اچانک ایک آدمی تیزی سے بھاگتا میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ اس آدمی کو قدموں میں گرتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اس آدمی نے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کوئی آدمی اور نہیں بلکہ چودھری تھا۔ اس کی حالت اس وقت بہت بری تھی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ مجھ سے معافیا مانگنے لگا اور کہنے لگا، میں تم سے بہت معذرت کرتا ہوں، میں تمہیں سارے پیسے واپس کر دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس چڑیل سے کہو میرا پیچھا چھوڑ دے۔ چڑیل؟ ایک لمحے کے لیے بھی وہ مجھے چین سے نہیں جینے دے رہی۔ اس کے آنے کے بعد میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ پھر وہ جلدی سے اپنی جیب ٹٹولنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے ہزار کے نہ جانے کتنے نوٹ نکالے اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں تمہیں تمہاری مزدوری سے زیادہ پیسے دے رہا ہوں، اب تم مجھ سے بولو کہ وہ میری جان چھوڑ دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا، نہ ہی کبھی تمہارے راستے میں آؤں گا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ اچانک میری نظر اس جن زادی پر پڑی جو مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ امید بھری نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھا نہیں۔ آبرو اٹھا کر اس سے سوال کیا۔ اس نے مجھے کہا، تم اس آدمی کو معاف کرو گے یا پھر اسے سزا دو گے؟ ایک نظر میں نے چودھری کی طرف دیکھا جو ہاتھ جوڑے میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے جن زادی کو کہا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں اس کی طرح ظالم انسان نہیں ہوں۔ تم بھی اسے کچھ مت کہو، ویسے بھی اس نے میرے پیسے ادا کر دیے، یقین ہے کہ مجھے دوبارہ پریشان نہیں کرے گی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جن زادی نے چودھری کو سارے کھیتوں میں بگایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسے بری طرح سے پیٹا تھا، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ وہ چودھری وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کیونکہ وہ بہت بڑی مشکل سے نکلا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگا کہ جن زادی کی آواز پر رک گیا۔ کیا تم ابھی بھی مجھ سے محبت کا اظہار تھا؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کیا پتا جب ٹھیک وقت ہو تو میں تمہارے پاس موجود رہوں۔ جن زادی کی بات سن کر تیزی سے میرا دل دھڑکا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دن سے وہ بہت زیادہ چپ ہے۔ اب نہ وہ مجھ سے کوئی مزاحیہ بات کرتی ہے اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتی تھی۔ وہ صرف اسی وقت میرے پاس آتی جب میں کسی مشکل میں مبتلا ہوتا۔ شام کے وقت بھی میں گاؤں میں چکر لگا رہا تھا کہ اچانک اتنے لوگ میرے سامنے آ گئے۔ وہ اچھے خاصے ہٹے کٹے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرا گیا،
لیکن پھر دوسرے ہی لمحے مجھے اس جن زادی کا خیال آیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جن زادی میری مدد ضرور کرے گی۔ اس میں سے ایک آدمی کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے مالک کی شکایت لگانے کی؟ میں نے اسے کہا کہ میں نے کسی کی شکایت نہیں لگائی۔ میں سائڈ سے ہو کر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور میں زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا وہ ہوا میں لہرانے لگا۔ اسے دیکھ کر باقی دونوں دوست بھی اس کے ڈر گئے اور اونچی آواز میں چلانے لگے۔ اس وقت جس جگہ میں موجود تھا وہاں پر ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ آدمی میری منتیں کرنے لگا اور مجھے کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے نیچے اتار دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی بھی دوبارہ پریشان نہیں کروں گا۔ پھر اس جن زادی نے انہیں اچھا خاصا سبق سکھا دیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ جن زادی میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، آج میں نے تمہاری آخری بار مدد کی ہے، اس کے بعد میں تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کر پاؤں گی۔ اسی وجہ سے اب میرا خیال اپنے ذہن سے نکال دو اور اب دوبارہ یہ مت سوچنا کہ جن زادی ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی، کیونکہ آج تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ آخر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ جن زادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ زیادتی تو تم نے میرے ساتھ کی ہے۔ اور تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ جن زادی اپنے قبیلے سے یہ اجازت لے کر آئی تھی کہ اسے صرف 1 مہینے کا وقت چاہیے، 1 مہینے کے اندر اندر وہ مجھے اپنے پیار میں مبتلا کر دے گی۔ اسے صرف اور صرف میرا اظہار چاہیے تھا۔ میں دل ہی دل میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں اس کے سامنے اظہار نہیں کرتا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ میرے منہ سے وہ سب کچھ کہلوانے کے لیے اس کے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت تھا، اور ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ مکمل ہو گیا تھا۔ جن زادی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بہت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہوں، میں تم اپنی محبت میں گرفتار نہیں کر پائی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بلکہ میں تو تم سے عشق کرتا ہوں، اور تمہارے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اب اس اظہار کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب تم جتنا مرضی اظہار کر لو، میں تمہیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو پاؤں گی۔ مجھے تم سے ہمیشہ یہی شکایت رہے گی کہ تم نے وقت پر یہ ساری باتیں کیوں نہیں کہی۔ نہ صرف تم نے خود کو تکلیف پہنچائی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم نے میری محنت کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ وہ جن زادی اس وقت بہت ٹوٹی پھوٹی معلوم ہو رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو اس نے ایک نہایت سرخ رنگ کی تھیلی میرے حوالے کی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اب اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی۔ اس میں ایک انگوٹھی موجود ہے، وہ انگوٹھی ہمیشہ ہی تم اپنے ہاتھوں میں پہنے رکھنا، کیونکہ جب تک وہ تمہارے ہاتھوں میں رہے گی مجھے تب تک یہ یقین رہے گا کہ تم زندہ ہو۔ کیا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا۔ اس نے تیزی سے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئی تھی۔ نہ تو اس نے مجھے الوداع کہا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی اور بات کی تھی۔ مجھے اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اب میں باقاعدہ رونے لگا اور پچھتانے کے علاوہ میرے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ میں تھکے ہارے قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ گھر جا کر جیسے ہی میں نے وہ تھیلی کھولی، میری تو آنکھیں ان ہیروں کی چمک سے ہی بند ہو گئی جو اس تھیلی کے اندر سارے موجود تھے۔ جاتے جاتے وہ مجھے انتہائی قیمتی ہیرے دے کر گئی تھی۔ میں نے جب ایک ہیرا جا کر بیچا تو وہ مجھے اتنے زیادہ اس کے پیسے مل گئے کہ اگر میں ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاتا رہتا تو بھی وہ پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر میں اپنی اماں کو لے کر شہر میں آ گیا اور وہاں پر اپنی پرسکون زندگی گزارنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے غریب لوگوں کی بھی مدد کرنے لگ گیا۔ مگر
میں اس جن زادی کو آج تک کبھی بھی بھلا نہیں سکا، اسی لیے میں اب کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اماں کی ضد کی وجہ سے میں نے ہار مان کر شادی کر لی۔ لیکن وہ انگوٹھی آج تک میرے ہاتھوں میں اسی طرح سے موجود ہے۔ اس انگوٹھی دلاتی ہے کہ وہ جن زادی آج بھی کہیں نہ کہیں میرے آس پاس